زمین کی گہرائیوں میں دفن ایک ایسی قوم جو ہر دن ایک دیوار کو چاٹ کر ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو انسانیت کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج، قیامت کی وہ بڑی نشانی جو سب کچھ تباہ کر دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ تصور کریں ایک ایسی مخلوق کا جس کے آگے سمندر کا پانی بھی کم پڑ جائے گا۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین پر خون و خرابے کے سوا کچھ نہیں بچائیں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یاجوج ماجوج کا فتنہ آخر ہے کیا، اور وہ کس طرح انسانیت کو نیست و نابود کریں گے؟ یاجوج اور ماجوج کوئی خیالی داستان یا کوئی ایلینز نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی وہ انسان ہی ہیں، لیکن ان کی تعداد اور ان کی فطرت عام انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی کتابوں اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر عام انسانوں کی تعداد کو ان سے کمپیئر کیا جائے، عام انسان ان کے سامنے آتے میں نمک کے برابر ہیں۔ وہ نہایت ہی ظالم، وحشی اور فسادی قوم ہے جو زمین پر صرف تباہی پھیلانا جانتی ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الکہف اور سورہ الانبیاء میں واضح طور پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی اور ان کے شر سے دنیا کو بچانے کے لیے ایک مخصوص وقت طے کر رکھا ہے۔ پرانی تاریخی کتابوں میں ان کے حلیے اپیرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور بال سرخی مائل ہیں۔ ان کی قوت اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے مقابلے میں آنا کسی عام انسان یا فوج کے بس کی بات نہیں۔ وہ جس علاقے سے گزرتے ہیں وہاں کی ہر چیز کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ان کی یہی وحشت انہیں دنیا کی سب سے خوفناک مخلوق بناتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم اور نامی گرامی بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے دنیا میں بڑی قوت اور اختیار دیا تھا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ دو پہاڑوں کے قوت کے درمیان ایک ایسی جگہ پہنچائے جہاں کے لوگ ان کی زبان مشکل سے سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے فریاد کی کہ یاجوج اور ماجوج اس زمین پر بڑا فساد پھیلاتے ہیں، ہمیں تباہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو خراج ٹیکس دینے کی پیشکش کی تاکہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو اختیار اور قوت مجھے میرے رب نے دی ہے وہ بہتر ہے، تم بس اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔ انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی چٹانوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان جمع کیا۔ جب وہ دیوار پہاڑوں کی چھوٹی تک برابر ہو گئی تو انہوں نے آگ لگوائی، اور جب لوہا سرخ انگارہ بن گیا تو انہوں نے اس پر پگھلا ہوا تانبا مولٹن کاپر ڈال دیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط اور چکنی بن گئی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جس نے اس وقت انسانیت کو بچا لیا۔ آج کے دور میں یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ان کے نکلنے کا وقت نہیں آ جاتا۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا کوئی عام حادثہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا کے آخری دور کا سب سے بڑا انقلاب ہوگا۔ ان کے آنے کی اصلی وجہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو قیامت کی نشانیوں کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ باب لط پر دجال کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا میں امن و امان کا ایک مختصر دور شروع ہوگا۔ پھر ایک دن جب یاجوج ماجوج دیوار کھودتے ہوئے آخری حصے پر پہنچیں گے تو ان کا سردار کہے گا، چلو باقی کل کھودیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس ایک لفظی اقرار کی برکت سے اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار ویسی ہی کھودی ہوئی ملے گی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ آخری ٹھوکر مرات ہی اس عظیم دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور ماؤنٹ طور کی طرف لے جائیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین پر خوف کی ایک نئی داستان شروع ہوگی۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا اور دیوار پاش پاش ہو جائے گی
तो ज़मीन एक ऐसी दीवानगी की गवाह बनाएगी जो तारीख़ में कभी नहीं देखी गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब यजूज और मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से तेज़ी से उतार रहे होंगे। ये अल्फाज उनकी बेपनाह तादाद और रफ्तार को वाज़ेह करते हैं। वो पहाड़ों, तिलों और हर ऊंची जगह से इस तरह नीचे आएंगे जैसे कोई बहुत बड़ा आतिश फशान वोल्केनो फटा हो या कोई अजीम सैलाब रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। उनके कदम ज़मीन पर पड़ते ही खौफ की एक लहर दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगी। तसव्वुर करें उस मंज़र का जब लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की तादाद में ये वहशी मखलूक पहाड़ी दरों से निकलकर शाउन और देहातों पर टूट पड़ेगी। निकालने की रफ्तार इतनी तेज़ी होगी कि दुनिया की मॉडर्न फ़ौजों को संभालने का मौका तक नहीं मिलेगा। उनके पास आम इंसानों की तरह कोई रहम या इंसानी जज्बात नहीं होंगे। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर मौजूद हर जिंदा चीज़ को निस्तो नबूद करना होगा। उनके कदमों की धड़क से ज़मीन कांप उठेगी और उनके चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाज़ें मिलों दूर तक सुनी जाएंगी। इस दौरान दुनिया का निज़ाम बिल्कुल ठप हो जाएगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, सैटेलाइट सिस्टम्स और दुनिया की बारी बारी कुव्वतें उनके सामने ढेर हो जाएंगी। लोग अपनी जानें बचाने के लिए घरों और किलों में छुपने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन उनके आगे कोई दीवार और कोई दरवाज़ा टिक नहीं सकेगा। वो दुनिया के जियोग्राफी को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। सही मुस्लिम की एक लंबी और निहायत मुस्तनाद हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यजूज और मजूज निकालेंगे तो उनकी पहली जमात बुहायरा तबारिया, सी ऑफ गैलिली, जो इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद है, से गुजरेगी। ये कोई मामूली झील नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी पानी की झील है जो पूरे इलाके को पानी सप्लाई करती है। लेकिन याजूज माजूज की पहली जमात की तादाद ही इतनी ज़्यादा होगी कि जब वो इस झील पर पहुँचेंगे तो वो इसका सारा का सारा पानी पी जाएंगे। वो पानी इस तरह ख़त्म करेंगे जैसे वहाँ कभी पानी का कोई वजूद ही नहीं था। जब उनकी दूसरी और आखिरी जमात वहाँ से गुजरेगी तो वो खुश्क ज़मीन को देखकर हैरत से कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये हदीस उनकी बेतहाशा तादाद और उनकी भूख प्यास की शिद्दत को दिखाती है। तसव्वुर करें एक ऐसी मखलूक का जो पूरी की पूरी झील को लम्हों में खुश कर दे। उनके रास्ते में जो दरिया या चश्मा आएगा वो उसे निस्तो नबूद कर देंगे। ये दुनिया में पानी के कुदरती ज़खायर की तबाही का आगाज़ होगा। बुहायरा तबरिया का सूखना इस बात का वाज़ेह सबूत होगा कि अब इंसानियत पर अजाब का वो वक्त आ चुका है जिससे लड़ना किसी के बस में नहीं। हज़रत ईसा AS से और उनके साथी जो उस वक्त कोहे तूर पर महसूर सराउंडेड होंगे, उन तक ये ख़बरें पहुँचेंगी तो उनके दिल भी इस खौफनाक मंज़र की शिद्दत से कांप उठेंगे। ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा कहत, फैमिन और प्यास का दौर होगा। याजूज मजूज के दुनिया में फैलते ही आम इंसानों के पास उनका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दुनिया की बारी से बारी मॉडर्न आर्मियाँ, एटम बॉम्ब, मिसाइल्स और वेपन्स उनके सामने बेअसर हो जाएंगे क्योंकि उनकी तादाद को ख़त्म करना नामुमकिन होगा। हदीस में आता है कि लोग उनके खौफ से भगाएंगे और अपने किलों, मजबूत घरों और पनाह गाहों में बंद हो जाएंगे। जो लोग शहरों में हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स और ऊंचे किलों में पनाह ले लेंगे, लेकिन याजूज मजूज ज़मीन पर फैलकर हर जिंदा चीज़ को निस्तो नबूद करेंगे। वो खेतियाँ तबाह कर देंगे, मवेशियों को खा जाएंगे और जो इंसान उनके हत्थे चाह चढ़ेगा उसे कत्ल कर देंगे। दुनिया भर की सड़कों पर सिर्फ तबाही, खाली गाड़ियाँ और स्मोक दिखाई देगा। इंसान अपने ही घरों में कैदी बनकर रह जाएंगे। खाना पीना ख़त्म होने लगेगा और दुनिया एक अजीम तरीन खौफ के साए में डूब जाएगी। वो ज़मीन का एक बड़े हिस्से पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेंगे। उनका फसाद सिर्फ किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं होगा, बल्कि वो पूरी दुनिया में तबाही फैलाएंगे। उनका खौफ इस कदर ज़्यादा होगा कि कोई इंसान दरवाज़ा खोलने या खिड़की से बाहर देखने की जुर्रत भी नहीं करेगा। वो दुनिया को एक जहन्नुम में तब्दील कर देंगे
जहाँ सिर्फ वहशत का राज होगा। जब दुनिया पर यजूज मजूज का मुकम्मल तसल्लुत डोमिनेंस हो जाएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया भर के पक्के मुसलमानों को साथ लेकर कोहे तूर माउंट तूर पर पानाह ले लेंगे। ये पहाड़ उनके लिए एक किला बन जाएगा जहाँ यजूज मजूज आसानी से नहीं चढ़ सकेंगे, लेकिन वहाँ मौजूद की कोई आसान आजमाइश नहीं होगी। कोहे तूर पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी और रिसोर्सेज या खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर ज़िक्र है कि उस वक्त कोहे तूर पर मुसलमानों के लिए खुराक की इस कदर शिद्दत से कमी होगी कि एक गाँव बुल बैला का सर भी उस ज़माने के 100 गोल्ड कॉइन्स दिनार से ज़्यादा कीमती और बेहतर समझा जाएगा। लोग भूख से बिलाक रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, लेकिन बाहर निकलने का मतलब सीधा मौत होगा, क्योंकि नीचे दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ यजूज मजूज का पहरा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी इस सख्त तरीन आजमाइश में सब्र करेंगे। वो दिन रात अल्लाह के हुजूर गिदगिदा कर दुआएं करेंगे और इस मुसीबत से निजात की फरियाद करेंगे। वो दुनिया भर के इंसानों को निस्तो नबूद करने के बाद एक पहाड़ पर जमा होंगे जो बैतुल मक़दस के करीब जबलुल खम्र होगा। वहाँ खड़े होकर उनका सरदार और उनके लोग नहायत ही तकब्बुर से कहाएंगे, हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया और उन पर खनबा पा लिया, अब आओ आसमान वालों को ख़त्म करें। ये उनके कुफ्र और जहालूत की आखिरी हाद होगी। वो अपने तीर, भाले और हथियार आसमान की तरफ चलाएंगे। अल्लाह ताला उनकी आजमाइश और उनके तकब्बुर को मज़ीद बढ़ाने के लिए उनके तीरों को आसमान से खून आलूद ब्लड स्टेन्ड करके वापस ज़मीन पर गिरा देगा। जब वो अपने तीरों पर खून देखेंगे तो खुशी से नाचते हुए चीखेंगे कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। वो समझेंगे कि अब दुनिया और आसमानों पर सिर्फ उन्हीं की हुकूमत है। कोहे तूर पर भूख, प्यास और सख्ती जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मुसलमान अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करेंगे। वो अल्लाह से कहेंगे कि ए हमारे रब, इस ज़मीन पर तेरे सिवा कोई हमारी मदद करने वाला नहीं, हमें इस वहशी मखलूक से निजात आता फरमा। अल्लाह ताला अपने अजीम पैगंबर और उनके मुक़द्दस साथियों की दुआ को कबूल फरमाएगा, लेकिन अल्लाह उन्हें ख़त्म करने के लिए कोई आतिश फशान या आसमानी फ़ौज नहीं भेजेगा। अल्लाह ताला उन सब की गर्दानों नेक्स में एक मखसूस कीड़ा पैदा कर देगा जिसे हदीस में नज़फ़ कहा गया है। ये एक किस्म का पराजवी या वर्म होता है। ये कीड़ा उनकी गर्दानों के अंदर फैलना शुरू होगा और देखते ही देखते उनके जिस्मों का खून चूस लेगा। अल्लाह का अजाब इस कदर अचानक और तेज़ी से आएगा कि उस कीड़े नग़फ़ थे ही अरबों की तादाद में मौजूद याजूज और माजूज एक ही रात में ढेर हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज हैं कि वो सब के सब इस तरह मर जाएंगे जैसे कोई एक शख्स सिंगल सोल मरता है, यानी उनके मरने में कोई वक्फा नहीं होगा, ना ही कोई बीमार होगा, बल्कि एक ही झटके में पूरी की पूरी आबादी बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगी। सुबह होते ही ज़मीन पर सिर्फ खामोशी होगी। वो फ़ौज जो कल तक आसमान को फतह करने के दावे कर रही थी, आज उसका हर एक जवान मिट्टी में लात पात पड़ा होगा। कोहे तूर पर जब अचानक दुनिया भर से याजूज माजूज की चीखें और शोर बंद हो जाएगा तो वहाँ एक अजीब सन्नाटा छा जाएगा।